یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں ستاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست کی موج کا ساحل۔ ابھی چراغ سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیداؤ دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لان اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج 14 اگست 2024 ہے۔ آج پاکستانی عوام اپنی 78ویں آزادی کا دن منا رہے ہیں، لیکن یہ جو میں نے چند اشعار فیض احمد فیض شاعر انقلاب کی نظم صبح آزادی سے چند پڑھے ہیں، انہوں نے تقریباً 66 سال پہلے جب ایوب دور میں پابند سلاسل تھی انہوں نے لکھی تھی، اور لکھی بھی 14 اگست کو ہی تھی۔ اور جس طرح اس دور میں 66 سال میں پاکستان کی انہوں نے منظر کشی کی ہے، خدا کی قسم 66 سال بعد بھی پاکستان کے حالات نہیں بدلے بلکہ پہلے سے بدتر ہوئے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ نظم لکھی تھی اس وقت پاکستان ایسٹ پاکستان بھی تھا، اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ 16 دسمبر 1971 میں کس طرح پاکستان کے 2 لاکھ بلکہ بڑا پاکستان، کیونکہ میجارٹی بنگالی پاکستانی ہوا کرتے تھے، ہم سے کس طرح 2 لاکھ ہوئے، وہ ہماری باپ کا، ہماری تاریخ کا ایک تاریخ تر باب ہے۔ اور پھر جس طرح اس وقت منظر کشی کی ہے، میں سمجھتا ہوں آج بھی دن نہیں بدلے۔ اس وقت بھی پاکستان سرزمین بے آئین تھا، آج بھی پاکستان میں آئین کی بے توقیری کی جا رہی ہے، آئین کو ایک ردی کا ٹوکرے میں ڈالنے والا ایک پیس آف پیپر سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان میں قانون نہیں تھا، آج بھی پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ اس وقت بھی جمہوریت نہیں تھی، آج بھی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اور پاکستانی عوام پر فارم 47 کے ذریعے 8 فروری کو بدماشی کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے چوروں لٹیروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی بنیادی حقوق پامال ہو رہے تھے، اور آج بھی اس سے زیادہ بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہو رہی ہے، سول لبرٹی کا نام نہیں ہے بلکہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا اور آج بھی ٹھیک نہیں۔ پاکستان پہ پہلے بھی اشرافیہ قابض تھی، مٹھی بھر اشرافیہ، اور آج بھی مٹھی بھر اشرافیہ، جس کی لیڈنگ رول جرنیل جو ہیں ہمارے بیوروکریٹس، ججز اور خاص کر سیاسی مافیا، ان کا گٹھ جوڑ پہلے بھی تھا اور آج بھی گٹھ جوڑ ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستانی عوام اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور جب حقیقی آزادی حاصل کریں گے تو پاکستان میں آئین کی بالادستی بھی ہوگی، پاکستان میں قانون کی حکمرانی بھی ہوگی، جمہوری روایات جو ماڈرن ورلڈ میں موجود ہیں وہ قائم ہوں گی، اور ہماری عدلیہ آزاد ہوگی، ہمارے بنیادی حقوق ہمیں ملیں گے، اور پھر ویلفیئر اسٹیٹ قائم کریں گے جو کہ ہر پاکستانی عوام کا خواب ہے۔ آج کی جو چند ولاگ پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے، اس سے پہلے کل اظہر مشوانی کا جو کیس ہے، ان کے بھائیوں کا کیس، ہیبیس کارپس پٹیشن، حبس بیجا کی پٹیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے، اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستانی عوام نے عمران خان کی کال میں پاکستان تحریک انصاف جس طرح کل نکلی، باوجود ظلم و جبر اور استبداد کے، فسطائیت کے اور غارت گروں کی غارت گری کے، پاکستانی عوام ان کی کال پہ بھرپور تعداد میں لکھی، خاص کر اسلام آباد اور پنجاب میں سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور سندھ میں بھی، اور کس طرح پاکستانی عوام نے ریزسٹنس شو کی، وہ میری ویلاگ کا حصہ ہوں گے۔ اظہر مشوانی آپ کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان پہ کیا گزری، پہلے ان کو اغوا کیا گیا، تقریباً 6 ہفتے ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا، اور پھر ہائی کورٹ کی انٹرونشن پہ ان کو آزادی دی گئی، اور پھر وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد بھی پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنی ویلاگنگ
अपने सोशल एक्टिविज़म जारी रखी हुई थी, जिसकी पादाश में उनके दो भाइयों को, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक़ है, उन्हें सबक सिखाने के लिए तकरीबन 6 जून को अगवा किया गया और 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं। आज भी वो दोनों भाई, जो कि अज़हर मिशवानी के मज़हरुल हक मिशवानी और ज़हूरुल हक मिशवानी, जो कि प्रोफेसर हैं, जिनका तालीम व तदरीस से ताल्लुक़ है, वो आज भी अगवा है। पहले उनके अगवा के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की गई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने रवायती तरीके से इस मामले को देखा और फिर हमारे जो अगवाकार हैं, जिसमें हमारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अज़हर मिशवानी से रब्ता भी किया, उनसे बात भी करवाई और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोशल एक्टिविज़म छोड़ दें। लेकिन उन्होंने हक का रास्ता जो अडॉप्ट किया है, सच का रास्ता अडॉप्ट किया है, उस पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी उनके भाई अगवा हैं, इनके कंट्रोल में हैं हमारे रियासती इदारों के। और फिर बाबर अवान के ज़रिए उनके वालिद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हैबियस पिटीशन फाइल की 6 अगस्त को, और फिर हेयरिंग हुई और कल भी एक हेयरिंग हुई थी, जिस पे पहले जो हेयरिंग हुई थी 6 या 7 को, उस पे तमाम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, आज इस्लामाबाद को, DGFIA को लिखा था कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन कल ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए और उन्होंने एक अपना बयान दिया है कि जी हमारी तहवील में नहीं, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोग आइन की पामाली कर रहे हैं, पूरी कौम के सामने है, और आप लोगों ने प्रोड्यूस ना करके, मैं समझता हूँ तौहीन अदालत की है। और बहरहाल इन्होंने वक्त मांगा, वहाँ उनके बिहाफ पे, स्टेट फेडरेशन के बिहाफ पे असिस्टेंट अटार्नी जनरल पेश हुए और फिर उन्होंने अटार्नी जनरल को नोटिस किया और सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी डिफेंस, IG इस्लामाबाद और DGFIA को पेश होने के लिए कहा 15 अगस्त को विद प्रोडक्शन ऑफ अज़हर मिशवानी के दोनों भाई। और अगर नहीं किया तो उन्होंने अंदिया दे दिया है कि जनाब हम आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि स्टेट इदारे हों और इनको नहीं मालूम, उनकी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है और ये सारे स्टेट इदारे कर रहे हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा आज़ादी के दिन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही थी, इमरान खान साहब ने भी कॉल दी हुई थी और इमरान खान की कॉल पे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, एक्टिविस्ट और लीडरान ने तैयारी की। और लेकिन जिस तरह से ख़ासकर इस्लामाबाद में और पंजाब में उनके ख़िलाफ़ एक रेड हुआ और उनको रोकने की कोशिश की, वो भी तारीख़ में ये बदतरीन दौर होगा। इस्लामाबाद में तकरीबन 3-4 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीजन ने एक मीटिंग बुलाई, शराज कियानी हमारे NA-47 के प्रेसिडेंट है, उनके घर पे, लेकिन उनको घेरा गया और फिर तकरीबन 25-26 हमारे वर्कर्स, जिसमें हमारे फार्म 45 के प्रेसिडेंट मेंबर कौमी असम्बली आमिर मसूद मुगल, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामाबाद रीजन के PTI के, उनको गिरफ्तार कल रात को किया गया। और उससे पहले रेड करके जो 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई, उसमें भी तकरीबन 17 लोग गिरफ्तार हुए और कल भी आज़ादी के दिन भी तकरीबन 24 को गिरफ्तार किया गया, जो कि आज अदालत में पेश किया गया। उम्मीद है उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या फिर ज़मानत हो जाएगी। इसके अलावा पूरी कौम ने देखा कितना डराव और हैरेसमेंट की गई और लोगों के घरों में जाके पकड़ा जा रहा था। लोगों के जो लीडरान हैं उनके घरों के बाहर पुलिस खड़ी कर दी गई ताकि बाहर ना आए। जरताज गुल यानी कि हर जगह रेड किया गया, पकड़ने की कोशिश की गई और तकरीबन रात 9-10 बजे तक यही कोशिश की गई। सबसे पहले जहाँ जहाँ भी झंडे तक बिक रहे थे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों को बिकने नहीं दिया गया, लेकिन खुफिया तरीके से लोग इसको खरीदते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उन झंडों में शामिल है जो झंडों में क्या, पाकिस्तान झंडे के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड जो कि लोग खरीद कर करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हैं। बहरहाल तमाम पाबंदियों के, तमाम जुल्म जबर के, लाकानूनियत के पूरी कौम कल निकली 10 बजे तक ये कोशिश करते रहे पकड़ने के लिए, छीनने के लिए, लेकिन जब अवाम का जम गफीर हर शहर गांव-गांव निकला
तो फिर पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और फिर पूरी कौम ने देखा, कराची से लेके खैबर तक और फिर बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक तमाम लोगों ने, तमाम अवाम ने या तो पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इमरान खान साहब का जो पैगाम था उस पर मनोअन अमल किया और तमाम कौम को बता दिया कि तमाम रियासती इदारों को बता दिया कि इमरान खान ही पाकिस्तान का फ्यूचर है और इमरान खान चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कौम को आज़ादी के मौके पर पैगाम दिया है। वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा AI पैगाम ने इमरान खान ने कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आज़ादी के 77 साल बाद भी मुल्क में अशराफिया के कब्ज़े में है। इस अशराफिया का यहाँ कुछ भी नहीं है। घर, दौलत और औलाद पाकिस्तान से बाहर है और सिर्फ लूट मार अपने मुख्तसर वक्त में 2 बार आज़ादी हासिल की। इनके माशी हालात बेहतर होने के बावजूद लोगों ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। पूरा निज़ाम हसीना वाजिद के कब्ज़े में होने के बावजूद हमारी खड़ी हुई और उनका धड़न तख्ता किया। पाकिस्तान के तो माशी हालात बांग्लादेश से भी बदतर हैं। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तौर पर ही इलेक्शन चोरी किया गया। वहाँ तो पार्टी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया और यहाँ जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया इसका वोट चोरी करके करप्ट हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया गया है। जाली हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अशराफिया की नुमाइंदा है और अवाम की नुमाइंदा नहीं है। इसके अलावा फायरवॉल के हवाले से आपको मालूम है बड़ी इन्होंने कोशिश की। पहले ताइवान की कंपनी को इन्होंने अरबों रुपए दिए लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। अब सुना है चाइना की कंपनी को इन्होंने मज़ीद पैसे खर्च करके अपना इन्होंने किकबैक्स भी लिया होगा, कमीशन भी लिया होगा और मज़ीद पाबंदियाँ लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के जहनों पर जो पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ुबानों पे ताला लगाने की कोशिश करके ये दौलत शाह की चूई जो उन्होंने पहले बना रखा था दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको हर महाज पर शिकस्त होगी और अवाम हर हाल में अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। और इस हवाले से मैं सिर्फ इफेक्ट्स बता दूं कि ये फायरवॉल से जहां पर आवाम को ये आवाम की सोचों पर पहरे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ये इस वक्त IT सेक्टर पूरी दुनिया में कमाई का बहुत बड़ा जरिया है और वन ऑफ द मेन रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री बन चुका है। और पाकिस्तान भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हुआ करता था। इमरान खान ने इस पर बड़ी मेहनत भी की और कई गुना इसकी इनकम में इजाफा किया। लेकिन फिर जिस तरह से तमाम सोशल मीडिया के ऐप से पाबंदी लगाई जा रही है और अब ये जो फायरवॉल की कोशिश की जा रही है उसमें इंटरनेट यानी बहुत स्लो कर दिया गया है। ना आप अपलोड कर पा रहे हैं ना आप डाउनलोड कर पा रहे हैं, समटाइम मैसेज तक नहीं जा रहे और स्क्रॉल हो रहा है। इससे पाकिस्तानी अवाम जो कि पहले ही सनत की दगरगू हालत की वजह से बेरोजगार हो रही थी, ज़राअत जो है रोबे सवाल है और तमाम जहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है तमाम चीज़ों में, इवन रियल इस्टेट में सेल परचेज का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। तो आवाम पहले ही बेहाल है, महंगाई बढ़ चुकी है, बिजली के बिल बढ़ चुके हैं, बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। एक आम तबका, एक आम क्लास, PN चपरासी मजदूर 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये बिल कैसे देगा, घर कैसे चलाएगा, सब आवाम को मालूम है। उसके बाद अब जो आवाम बेचारी नेट के ज़रिए कुछ पैसे कमा लेती थी, अब उस पर भी पाबंदी लगा के ये पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुकाबला जारी रहेगा। आखिर में इमरान खान साहब ने जो फ़ौज के हवाले से एक बयान दिया है उसके बाद मैं इख्तिताम चाहूँगा। फ़ौज सारे पाकिस्तान की है, अकेले आर्मी चीफ की या किसी एक सियासी जमात की नहीं। जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि कौम क्या फैसले कर रही है, किधर खड़ी है और फौजी क़यादत कहाँ खड़ी है। फ़ौज और अवाम में ऐसा फैसला कभी नहीं देखा। उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फ़ौज के आमने सामने खड़ा कर दिया है। 9 मई को उन्होंने खुद आग लगाई है। ISI ने फुटेज छुपा रखी है ताकि असल किरदार सामने ना आ सके। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।